welcome to our YouTube channel. In the previous video, we have shared the setup of the question paper, division of marks and syllabus about the English core for class 12. Right from this video, we are going to start the syllabus for your board examination. We have shared two books in the previous video, which is Flamingo and Vistas. We are going to start with the syllabus from the Flamingo book, which is I told you that this is a reader book which would include the lessons and the poems. This will be the very first lesson from your book, Flamingo, but the name of the lesson is the last lesson. Whenever we start the syllabus for the 12th class, and when we used to announce to the students that we are going to start the syllabus, and your first lesson from the syllabus would be, the name of the lesson is the last lesson. The last lesson, as it indicates, this is a story written by Alfonso Rodet. Before we start, I just want to share a brief summary that this is a story about the war which is called Franco-Prussian War. What exactly this is? Prussia was a country which includes three areas: Germany, Poland and few parts of Austria. There is a war between France and Prussia, and that war was won by Prussia. In your syllabus now, in this book, there is a map mentioned in the, when we read this, look at this. This is a map of France. It's been mentioned that it is 1870 and 71 timing map when this war was there. During that war, Prussia actually captured these areas of France. And this is a story from this particular part of France that we are going to start today. And this is a story about a teenager boy who was actually not aware about that what war was and what would be the consequences of the war. So he was the boy who almost felt like what to do now. So let's start with the story. If we talk about the writers and all, so when we used to write the answers in the examination, we have to give 1 or 2 line description for the writer, or you can say we have to mention the name of the writer while attempting these long questions. It would enhance your presentation for the long questions. So let's start with the lesson. This is a story. The main character in the story is a teenager boy. Mind you, the presentation of Alfonso Rodet is a bit different when we write. He mentioned the name of the boy right on the second page of the lesson. This is the character. Two main characters we have in the story. One is Franz and the other one is M. Hammer. Franz is a teenager boy who do not like to go to school. उसे स्कूल जाना पसंद नहीं है, एंड whenever he thought about, जब भी सोचता था कि स्कूल जाएं, he just felt of scolding. So let's start the reading. I started for school very late in the morning and was in great dread of scolding. Great dread of scolding means जब भी वो स्कूल जाता था उसके अंदर एक डर होता था. किस चीज़ का डर? नॉर्मली स्टूडेंट्स में होता है डांट का. और डांट कब पड़ती है? Especially because M. Hamel had said that he would question us on participles. ये था जी उसका डर. His teacher, Mr. M. Hamel, used to give him a homework of participles. Hamel is a character who is a French teacher. He used to teach French language in the class, and he had an experience of approximately 40 years. So it was a time for Hammer which was very difficult, because जो फ्रैंको-प्रूशियन वॉर हुई थी उसमें जब प्रूशिया ने फ्रांस के एरियाज़ को टेक ओवर किया था, दैट आई मेंशन्ड अर्लियर,
यहाँ पे देखो दे हैव गिवन दीज टू, देयर ही जस्ट these two areas mentioned which were taken over by Prussia. तो हैमल वो जो टीचर था ही वॉज इन अल्सैश। तो यहाँ पे एक ऑर्डर्स निकले थे व्हेन प्रूशियन आर्मी वन दिस बैटल दैट फ्रॉम द डे दे अनाउंस देयर विक्ट्री, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड फ्रेंच लैंग्वेज वुड बी बैंड इन दीज एरियाज। वहाँ पे जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो पढ़ाई नहीं जाएगी। From there on, German language will be imposed. That was जो French language है उनकी mother language है. So this is one of the hardest time for the French people there residing in these areas. भी अपनी mother language को छोड़ना और उसके बिना survive करना, this is a difficult task. तो यहाँ पे हमारा जी first theme of the lesson आता है सामने, that is language chauvinism. Language chauvinism is a point. I just need to tell you. Wait, give me a second only. When we talk about this language chauvinism, look, this is the theme of your lesson. First thing that you call it to be. This is language chauvinism. Language chauvinism होती है importance of your mother language. Your mother tongue. How important your mother language is for you? कितनी importance आपकी लाइफ में, how much you depend on your mother language. तो इस लेसन का जो बेस थीम है वो है जी लैंग्वेज शॉविनिज्म। तो यहाँ पे वापस आते हैं। हैमल जो है 40 years एक्सपीरियंस है उसके पास फ्रेंच टीचिंग का। तो इज़ अ टीचर ऑफ दिस फ्रांस। तो फ्रांस इज़ वेरी ड्रेडफुल अबाउट दिस स्कोल्डिंग। डांट से डरता है हैमल की। डांटता क्यों है? क्योंकि उसने एक होमवर्क दिया था पार्टिसिपल्स का दैट ही हैड टू डू, बट नॉर्मली फ्रांस वॉज नॉट यूज टू ऑफ डूइंग हिज होमवर्क। उसको ज़्यादा आदत नहीं थी। वॉट वॉज ही यूज टू? ही सेड दैट आई डिडंट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट ऑफ दैट। पहला भी वर्ड कहता पार्टिसिपल्स का पता नहीं, क्या करूँगा। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग अ डे आउट ऑफ डोर्स। कहता जी पहली सोच आई ये भाग जाता हूँ एंड स्पेंड डे आउट ऑफ डोर्स, स्कूल ही नहीं जाते, लेट्स बी एन्जॉय द डे, बाहर चलते हैं। क्यों? इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट। बाहर जो दिन है काफ़ी वार्म है, काफ़ी ब्राइट है। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। वुड्स हेयर इट मीन्स द फॉरेस्ट एरिया दैट यू कैन से, ओपन एरियाज, फॉरेस्ट एरियाज जो होते हैं। और इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल द प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। सॉ मिल है उस वहाँ पे एक ओपन फील्ड्स में, वहाँ पे जो प्रूशियन सोल्जर्स हैं, बिकॉज जो वॉर है वो चल रही है, तो जो प्रूशियन सोल्जर्स है, माइंडेड दिस इज़ द लास्ट लेसन जो है, ये वो दिन है जब प्रूशियन सोल्जर्स दे आर गोइंग टू टेक ओवर दैट एरिया। उस एरिया पे जो उनका उस एरिया को एक्वायर करेंगे, उस पर अपना होल्ड देंगे, कब्जा करना जिसको आप बोल सकते हो, आफ्टर द वॉर। तो ही सेड दैट लेट्स बी आउट ऑफ द क्लासरूम, स्कूल ही नहीं जाते, बर्ड्स को देखने चलते हैं, या वुड्स में घूमेंगे, या ओपन फील्ड में जहाँ पे प्रूशियन सोल्जर ड्रिलिंग करते हैं वहाँ जाएंगे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स, बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरिड ऑफ टू स्कूल। एक चीज़ समझो, ये जो आई वर्ड आता है, दिस इज़ फॉर द नरेटर ऑफ द योर स्टोरी। जो आपको स्टोरी सुनाएगा उसकी इंट्रोडक्शन है। तो यहाँ पे जो आपका नरेटर है, जो आपको कहानी सुना रहा है, वो फ्रांस है, ठीक है। एंड फ्रांस इज हिमसेल्फ इज एक्सप्लेनिंग हिज एक्सपीरियंस ऑफ दैट डे। तो कहता जी मैं जाता ही नहीं, पर फिर खुद को रेजिस्ट किया, कहता नहीं आई हैव टू गो टू स्कूल। तो स्कूल जाता है, भागता है स्कूल की तरफ। व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। कहता हरीडली आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स द स्कूल, मैं भाग रहा था स्कूल की तरफ। तो रास्ते में टाउन हॉल, दिस इज़ अ कॉमन प्लेस इन द मार्केट एरिया, तो वहाँ पे कुछ लोगों की भीड़ थी। कहाँ पे भीड़ थी? बुलेटिन बोर्ड्स लगे थे वहाँ पे रास्ते में कहीं कहीं, जहाँ पे न्यूज़ डिस्प्ले होती थी। उस टाइम पे देयर वाज नो प्रॉपर सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन या प्रॉपर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो
people used to use these bulletin boards. तो वहाँ पे bulletin board, so he was standing crossing that bulletin board because for the last 2 years all our bad news had come from here. फ्रांस कहता है पिछले 2 सालों में जितनी भी बुरी न्यूज़ आई हैं वो सारी इस बुलेटिन बोर्ड से आई हैं। कौन कौन सी न्यूज़ थी? लॉस्ट बैटल्स, प्रूशिया के साथ जो बैटल थी वहाँ पे समझाते थे कौन सा दिन हमारा अच्छा था कौन सा नहीं बैटल में। ड्राफ्ट्स, जो ऑर्डर्स आते थे, ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, जो उनके कमांडिंग ऑफिसर थे उसके ऑर्डर्स आते थे दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू और व्हाट वी हैव टू डू, क्या करना है हमें आज क्या नहीं। डेली की एक न्यूज़ अपडेशन होती थी बुलेटिन बोर्ड पे। सो ही जस्ट सेड टू हिमसेल्फ, आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। उसके दिमाग में क्वेश्चन आया ज़रूर था भी आज कौन सा कारण है यहाँ पे इस भीड़ का। बट इट डिडंट स्टॉप देयर, रुका नहीं वो वहाँ पे। ही कंटिन्यूड टुवर्ड्स हिज स्कूल। Then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith washer who was there with his apprentice, apprentice बोलते हैं जी हेल्पर को, जिसके साथ काम करता था, reading the bulletin board called after me, do not go so fast Bob, you will get to your school in plenty of time. So as I was running towards my school, कहता मैं बड़ी जल्दी में भाग रहा था अपनी स्कूल की तरफ, तो वहाँ पे एक ब्लैक स्मिथ था। ब्लैक स्मिथ बोलते हैं जो लोहार को, जो लोहे का काम करेगा। एक रैंडम सा करेक्टर है यहाँ पे, उसका नाम है जी वॉशर। ही वॉज देयर, वहाँ पे खड़ा था अपने हेल्पर के साथ, रीड कर रहा था बुलेटिन बोर्ड को। उसने मेरे को पीछे से कहा, कहता डू नॉट गो फास्ट सो फास्ट बाप, इतनी जल्दी मत भागो स्कूल की तरफ। बाप जो वर्ड होता है, दिस इज़ अ वर्ड दैट वी नॉर्मली यूज टू कॉल समवन अ रैंडम वन। उसका नाम ना पता हो तो वी यूज टू कॉल दैट द फ्रेंच पीपल यूज टू यूज दिस वर्ड। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, कहता बहुत टाइम है तेरे पास तेरे स्कूल पहुंचने के लिए। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, कहता मेरे को शायद उसने रोज़ ऐसे लेट जाते देखकर तो शायद मेरा मजाक उड़ा रहा है वो इंसान। एंड रीच एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। यहाँ पे ना एम हेमल के गार्डन का एक छोटा सा रेफरेंस आया है, जब हम आगे रीडिंग करेंगे आई गॉट टू टेल यू कि यहाँ पे गार्डन क्यों आया, ठीक है। तो कहता जैसे मैं पहुँचा तो स्कूल पहुँचती मेरे को सबसे पहले वहाँ पे हेमल का गार्डन दिखा। Usually when school began, there was a great bustle which could be heard out in the street, the opening and closing of desks, lessons repeated in unison, very loud, with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. In all these lines, Alfonso Daudet had just tried to create an environment for a school day. जो नॉर्मली स्कूल्स का दिन होता है उसको क्रिएट करने की कोशिश किया। तो फ्रांस क्लियर कर रहा है, कहता जैसे ही मैं स्कूल पहुंचा, नॉर्मली जैसे स्कूल बिगिन होता है तो वहाँ पे ग्रेट पसल चहल पहल थी, विच कुड बी हर्ड, स्ट्रीट तक कहता आवाज़ें जाती हैं स्कूल की जब सुबह का टाइम होता है। आवाज़ें कैसी, जैसे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, बच्चे क्लासेस में जाके अपना फर्नीचर सेट कर रहे होते हैं, या लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, यूनिसन मीन्स होती है ड्रिलिंग, when students used to repeat the things in a single same tone repeatedly, बार बार एक ही चीज़ को ज़ोर ज़ोर से दोहराते हैं तो उसको यूनिसन बोलते हैं। तो कहता क्लासेस में से ऐसी आवाज़ें आती हैं वेरी लाउड, बड़ी लाउड होती हैं, विद आवर हैंड्स और आवर ईयर्स, कानों के ऊपर हाथ रख के कहता उन चीज़ों को समझना पड़ता है। एंड द टीचर्स ग्रेट रूल ऑफ रैपिंग, हाथ में कहता जी हमारे टीचर के जो होता है रूलर स्केल, उसकी बजाने की आवाज़ आती है। सो दीज आर द कॉमन थिंग्स, कॉमन वॉइसेस जब आप स्कूल जाते हो। कहता मैं सुनता था तो आज भी होनी चाहिए थी, बट प्रॉब्लम वॉज नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, कहता सारा कुछ बहुत स्टिल था। लेट मी टेल यू वन थिंग, नॉर्मली ना बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनके पीछे साइंस ऑफ एक्सक्लेमेशन है। ऑल्दो ही वॉन्टेड टू क्रिएट अ क्वेश्चन हेयर, यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट करने की कोशिश थी उसकी, तो उसने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा के छोड़ा है जस्ट टू मेक एन इम्प्रेशन, भाई पूछेगा भी किससे। सो ही वॉज जस्ट ट्राइंग टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ। भाई कहता सारा बहुत स्टिल था, क्यों था ये नहीं पूछा उसने। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन, कमोशन होती है कन्फ्यूज एंड लाउड वॉइसेस, नॉइजी एक सिनेरियो होता है जब बहुत सारी आवाज़ें हो, हम उनको आइडेंटिफाई ना कर पाए किसकी आवाज़ है कितनी आवाज़ें हैं,
तो हम वहाँ पे वर्ड यूज़ करते हैं जी कमोशन। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क। कहता उतनी सारी आवाज़ों से जब मैं निकल के आना था तो आई वॉज ट्राइंग टू रिकलेक्ट माई सेल्फ टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन। कहता कोशिश यही थी कि कोई मेरे को ना देखे, उससे पहले मैं अपने टेबल पे पहुंच जाऊं। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। संडे में स्कूल कैसा होगा, यू नो योर सेल्फ, आप जानते हो भी संडे मॉर्निंग की जितनी क्वाइटनेस कहता हूँ स्कूल में थी उस दिन। फ्रांस कह रहा है, कहता मेरे को लगा इतनी आवाज़ों में से निकल के जाऊँगा तो मेरे को डेस्क तक बिना नोटिस किए पहुँचना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो कहता उस दिन आवाज़ ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि जो संडे मॉर्निंग वाली जैसी जो उसकी एनवायरनमेंट था स्कूल का। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। कहता जैसे ही मैंने विंडो में से देखा झांक के, माई क्लासमेट्स वर देयर इन द क्लास, बैठे थे वो, एंड एम हेमल वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन। अप एंड डाउन मीन्स क्लास में इधर उधर घूम रहा था, अलॉन्ग विद हिज टेरिबल आयरन रूलर। ये हेमल का हथियार था जी, जो बच्चों के लिए यूज़ करता था, तो वो अपने साथ लेके घूम रहा था उसको। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। कहता दरवाज़ा खोलना ही पड़ा, अंदर जाना ही पड़ा सबके सामने। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड। ब्लशिंग वर्ड यूज़ होता है जब बहुत शर्म आ रही हो। दिस इज़ ब्लशिंग व्हेन वी फील पैम्पर्ड, बट यहाँ पे ही वॉज फीलिंग एम्बेरस्ड। उसको शर्म आ रही थी क्योंकि ही वॉज लेट। सिकली ही वॉज वेरी फ्राइटेंड, बहुत डरा हुआ था, एंड उसको नहीं पता था आज हेमल उसके साथ क्या करने वाला है। बट स्ट्रेंजली नथिंग हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ। हेमल ने कुछ नहीं कहा। एम हेमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, वी आर बिगिनिंग विदाउट यू। कहता मेरे को कहता अपनी जगह पे चल जल्दी जल्दी फ्रांस, हम तुम्हारे बिना ही स्टार्ट करने वाले थे लेसन को या क्लास को। I jumped over the bench and sat down at my desk, not till then when I had got a little over my fright. कहता मैं भागा जी, कूद के अपने बेंच पे बैठा, सेटल डाउन हुआ। कहता जब तक मेरे को अपने डर के ऊपर आई डेंट हैव अ कंट्रोल, मैंने अपने डर के ऊपर जब थोड़ा सा काबू किया तो आई नोटिस समथिंग। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट। What I noticed, कहता मैंने देखा मेरे टीचर ने अपना ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना हुआ था। हिज फ्रिल्ड शर्ट, उसकी एक शर्ट पहनी थी उसके साथ में, फ्रिल्ड शर्ट जो होती है, दीज आर द ओल्ड टाइप ऑफ आउटफिट्स, एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप। 3 थिंग्स जो उसने नोटिस की, पहला ग्रीन कोट, दूसरा फ्रिल्ड शर्ट, तीसरी थी जी लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड। ठीक है, सारी एम्ब्रॉयडर्ड थी वो कैप जो थी। दैट ही नेवर वॉर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइस डेज। नॉर्मली ये जो कपड़े थे वो हेमल तब पहनते थे या तो स्कूल में इंस्पेक्शन हो या कोई प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन या सेलिब्रेशन टाइप कोई एनवायरनमेंट हो। अदरवाइज कहता आई हैव नेवर सीन दिस पर्सन वेयरिंग दिस काइंड ऑफ क्लोथ्स, पर आज पहने हुए थे। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सॉलम। सॉलम होता है जी वेरी सीरियस, नथिंग गुड वॉज हैपनिंग अराउंड। वहाँ की जो एनवायरनमेंट था काफ़ी स्ट्रेंज और कहता वेरी सीरियस नोट पे था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट दे वर ऑलवेज एम्प्टी। कहता एक सरप्राइजिंग एलिमेंट था जब मेरी क्लास में ज़्यादातर कहता जो ब्लैक बेंचेस थे, जो लास्ट के बेंचेस थे मेरी क्लास में, वो खाली होते थे, कोई बैठता नहीं था वहाँ पे। बट टुडे विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स। कहता बहुत से लोग जो थे विलेज के उस एरिया के, दे वर सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स, जैसे हम बैठे थे चुपचाप। लाइक ओल्ड हाउसर ही वॉज विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट। ओल्ड हाउसर बैठे थे वहाँ पे, उनकी जो 3 कॉर्नर्ड हैट थी। लेट मी टेल यू वन थिंग, जब हम +2 में लेसन्स पढ़ते हैं ना तो उन स्टोरीज़ में ना कैप्स और हैट्स का बड़ा मेंशन आता है। सो यू हैव टू कीप इट इन माइंड। आपको ये चीज़ें थोड़ी सी याद रखनी पड़ेंगी कि कौन से लेसन में कैसी कैप्स मेंशन है। जैसे इसने हैमल की मेंशन की थी ना, लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ही वॉज वेयरिंग। यहाँ पे हाउसर की मेंशन कर रहा है दैट ही वॉज वेयरिंग 3 कॉर्नर्ड हैट। ठीक है, कौन था जी हाउसर? ही वॉज अ फॉर्मर मेयर। ठीक है, एक पोस्ट मास्टर बैठे थे वहाँ पे, सेवरल अदर बिसाइड्स, काफ़ी और लोग भी बैठे थे। क्यों बैठे थे?
आई वॉज सरप्राइज्ड अबाउट, उसके बारे में कहता मैं काफ़ी हैरान था. All look very sad. So everybody was very sad, and Hauser had bought an old primer. Understand this word primer? Primer वो books को बोलते हैं जो beginning books होती है. Whenever you were in your lower classes, starting classes में थे, तो वहाँ पे आपके पास alphabets की books होती थी. A, B, C, D, A for apple, B for boy. So that we used to call the primers. So all of them they were carrying the French language primers. फ्रेंच लैंग्वेज के जो स्टार्टिंग वर्ड्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उनकी बुक्स, उसका जो प्राइमर था दैट द पीपल वर होल्डिंग इन देयर हैंड्स, तो हाथ में लेकर बैठे थे. थम्ड एट द एजेस एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस. तो हाउजर जो थे वो ओल्ड प्राइमर, अपनी पुरानी बुक जो थी वो लेके बैठे थे, उसके एजेस पे उसको वो बार बार थम्बिंग कर रहे थे वहाँ पे. नीज के ऊपर उसने अपनी जो उसके ऊपर वो बुक रख रखी थी, एंड बुक के ऊपर उन्हें अपने स्पेक्टिकल्स रख रखी थी. ठीक है. सो दैट वाज दिस इज़ ऑल व्हाट ही नोटिस्ड. फ्रांस ने ये सारा कुछ नोटिस किया व्हेन ही एंटर इनटू हिज क्लासरूम. ओके. आफ्टर दैट कहता वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, समझ तो नहीं आ रहा था, कहता पर कोशिश जारी थी. एम हेमल माउंटेड हिज चेयर and in the same grave and gentle tone which he had used to me said. कहता इतना सारा कुछ जब I was trying to make it a point, सोच रहा था ये सब क्या है. हेमल वहाँ पे अपनी चेयर रख के उन्होंने कुछ बोलना शुरू किया. he was feeling very grave, बहुत सैड थे और उनकी टोन बड़ी जेंटल थी. नॉर्मली he was not used to of M. Hamel's gentle tone, बट आज कहता उनकी टोन बड़ी जेंटल थी, जैसा उन्होंने मेरे साथ बात की थी उसी टोन में ही स्टार्टेड. माई चिल्ड्रन, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शिल गिव यू. जस्ट माइंड दिस सेंटेंस प्लीज. दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शिल गिव यू. कहता जी ये मेरा लास्ट लेसन है जो मैं आज आपको सुनाऊंगा. दिस ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन. बर्लिन से ऑर्डर आया है. क्या ऑर्डर आया है? To teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. ये दो एरियाज थे फ्रांस के जो प्रूशियन आर्मी ने टेक ओवर किए थे, और फाइनल ऑर्डर्स आए थे जी बर्लिन से. क्या आए थे? दैट आज के बाद यहाँ पे फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, बिकॉज अब वहाँ पे जो रूल था वो जर्मन्स का था. The new master comes tomorrow. This is the last French lesson. Last lesson means ये last French lesson है. I want you to be very attentive. What a thunderclap. Thunderclap, how will you define this word? How will you explain this word? That depends. फ्रांस कहता मेरे लिए ये वर्ड जो था एक बहुत बड़ी आफत की तरह आया. कहता मेरे को ऐसे लगा जैसे मेरे कानों में ना बहुत बड़ी किसी ने कोई ज़ोर से आवाज़ की हो. And it was almost a very shocking news for me. What a thunderclap these words were to me. कहता मेरे लिए जो words थे ये बहुत एक बड़ी जैसे मुसीबत बन के आया, या बहुत बड़ा एक ऐसी चीज़ थी which I was not expecting at all. Oh, the wretches! That was they had put up at the town hall. कहता ये लिखा था टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड पे. क्या लिखा था? ये that Berlin had issued an order to teach German from today on. आज के बाद जी जर्मन पढ़ाई जाएगी. Here we are going to close our video for this lesson. I'm just trying to provide you the content as much explanatory I can, क्योंकि जब हम सिलेबस स्टार्ट किया है सो कोशिश मेरी यही रहेगी कि आपको एक अच्छा हेल्दी और एक्सप्लेनेटिव कंटेंट प्रोवाइड करवा पाऊँ. So we just try to keep the rest of the lesson to in our next video. I just expect from you people to subscribe our channel and like this video, and maximum if you can share, that would be a help for my content creation. तो next video में we will be back with the rest of the lesson. क्या हुआ आगे फ्रांस के साथ,
क्या किया हैमल ने उस लास्ट लेसन में, क्या क्या समझा पाया हैमल अपने उस लास्ट लेसन में, बच्चों से क्या कह के हैमल ने अपना वो लास्ट लेसन कंक्लूड किया. सो वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो. Until then, have a nice day. Thank you.